Chalo, let us go to the next question. That is question number 27. So what does it say? That is current liabilities do not include. सबने पढ़ा था current liabilities what do they include? अब ये बता रहा है current liabilities do not include. ये क्या होगा? Bills payable, that is a current liability. B option है creditors, this is also a current liability. C is outstanding expenses, ये भी current liabilities है. So fourth is debentures. Debentures are not current liabilities. They are liabilities but not current liabilities. क्यों? क्योंकि debentures एक type of loan होता है जो company लेती है with a promise to pay or repay after a number of years. So वो सिर्फ एक साल के लिए debentures को purchase नहीं किया जाता है. That continues for more than a year. So ये current liabilities नहीं है. Okay. So now moving on to the next question, question number 28. So बच्चों आपके पास अपनी कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए. नोट करते रहो जो भी इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटी छोटी चीजें आप इसको लिखते रहोगे और फिर घर जाके आप इसको पढ़ोगे और इसको इलैबोरेट करोगे तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 28 is on 31st March, there is a closing stock of 10,000. So this can be classified as, इसको option क्या क्या है? An event or a transaction. A transaction as well as event, या neither a transaction nor an event. So closing stock 10,000, what does it mean? कि आपका during the year आपने पूरा परचेज किया होगा, उसके बाद फिर सेल किया होगा, और इस सेल परचेज या सेल को करने में आपके बहुत सारे खर्चे आए होंगे, तो वो सारा भी आपने इनकर किया होगा. सो ऑल दीज आर ट्रांजैक्शंस. लाइक परचेज किया तो आपके पास गुड्स आए, आपने उसको पेमेंट किया. सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन जिसमें गिव एंड टेक ऑफ टू थिंग्स लगता है और आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हो. लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ये सारा चीज करने के बाद आपके पास जितना स्टॉक बच जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक. सो दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, दिस इज अ इवेंट. इवेंट क्या होता है? इन अकाउंटिंग वी कंसिडर द एंड रिजल्ट एज एन इवेंट. सो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको आप कह सकते हो इट इज एन एंड रिजल्ट और इट इज अ फाइनल एक क्लोजिंग एंट्री. तो इसको हम इवेंट कहते हैं. सो क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट. सो ए ऑप्शन विल गो. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. The main purpose of dash accounting is to ascertain profits or loss during a specific period and to show the financial position of the business. So types of accounting के बारे में पूछा है. तो we have read types of accounting क्या क्या होता है. एक financial accounting, cost accounting and management accounting. These three are the main types of accounting. So financial accounting, this includes the recording of transactions and finally making the profit and loss or financial statements in order to derive the financial position of the business. ये financial accounting department का काम है. अब cost department का क्या काम है? तो to look after the cost of all the items, कौन सी चीजों का कॉस्ट आपको सेम रखना है, किसको आपको रिड्यूस करना है, आपकी बजटिंग क्या होगी. दिस इज द वर्क ऑफ द कॉस्ट डिपार्टमेंट. मैनेजमेंट, this involves all the decision making, the operational part and the decision making. This is done by the management department. वो financial results देखने के बाद वो decide करती है कि क्या further course of action होना चाहिए. Human resources involved in managing the staff, the employees, their appointment, their payment, their salary and everything. ठीक है. So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द मेन पर्पस ऑफ डैश अकाउंटिंग इज टू एसरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड एंड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन. तो ये आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का ही काम है. ओके. सो फर्स्ट ऑप्शन फाइनेंशियल. Now moving on to the next question. Question 30. So goods that will be used in production are considered as either raw materials या work in progress या finished goods या inventory. So it is very simple. जो production के लिए
गुड्स परचेज किया जाता है वो हम रॉ मटेरियल्स ही परचेज करते हैं. रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्शन में डाला जाता है एंड आउट ऑफ दैट वी डिराइव द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. So goods that will be used in production are the raw materials. So the question number 31, the correct sequence of accounting process is. अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है ये एक पूरा फ्लो चार्ट होता है. इसको आप जब भी नोट्स बनाइएगा तो इसकी पूरी फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा. तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको समझने में, आपको याद करने में बहुत इजी होगा. ठीक है. सो फ्लो चार्ट में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, उसके बाद होता है रिकॉर्डिंग, उसके बाद फिर क्लासिफाइंग, समराइजिंग. ये इस तरह से आप करते करते फिर आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस, फिर बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट एंड फाइनली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रेडी. ठीक है. सो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, आइडेंटिफाइंग. फर्स्ट लेट अस सी द ऑप्शन, आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग. ये गलत है क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग होगा उसके बाद फिर क्लासिफाइंग होगा. B is identifying, recording and communicating. This makes sense क्योंकि आप identify करते हो transactions को, उसके बाद record करते हो, उसके बाद फिर आप summarize करते हो, classify करते हो. सारी चीजें करने के बाद लास्ट में जब आपका पूरा financial statement बन जाता है और result आपका जो भी होता है profit or loss, that you communicate to the users. Okay. So C is analysis, recording, summarizing. This is also not correct. And D is communicating, recording, interpreting. This is also not correct. So B will be your answer. So I think आज हम लोग एड करते हैं इस लेक्चर को. हम बाकी के क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आई होप बच्चों आपको अच्छा लग रहा है. क्वेश्चन आंसर्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द होल चैप्टर. आप इसके बाद अगर आप चैप्टर को रीड करोगे तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे. सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस. सो सी यू नेक्स्ट.